Good morning, everybody, and welcome to this new series of workshops that we are starting today. We have gone through accessible reading in the past, and now we are going to connect our reading experience to other sectors of our life. And in that series today, we are starting with career guidance for persons with visual impairment. सभी को नमस्कार और हमारी ये नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो हमने सुना था वो हमने ये सुना था कि हम एक्सेसिबल रीडिंग कैसे करें। आज से जो आगे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स है उसमें हम ये जो एक्सेसिबल रीडिंग का इस्तेमाल करके लाइफ में आगे कैसे बढ़े उसकी कुछ बातचीत करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे जहां ब्लाइंड काम कर सकते हैं, अलग अलग और जो प्रोसेसेस है लाइफ में जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह उसकी बात करेंगे। तो ये आगे आने वाले प्रोग्राम्स कुछ बिल्कुल नई दिशा में हमें लेके जाने वाले हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है वो कैरियर्स के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया है। ये प्रोग्राम हमारे साथ करने में दो संस्थाएं और जुड़ी है बुकशेयर के अलावा, और वो है एनेबल इंडिया जो बैंगलोर से है और लक्ष्य फॉर डिफरेंटली एबल जो रांची झारखंड से है। हम दोनों संस्थाओं के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा साथ देने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। So for this exciting workshop we are joined by two other organizations, Enable India, which specializes in career guidance and digital literacy for persons with multiple disabilities. They are from Bangalore, and we are also joined and supported by Lakshya for Differently Able, which is an organization based out of Ranchi in the state of Jharkhand. So thanks to both these organizations. As usual, we are supported also by our Bookshare staff, Zainab, Sanjog, Sia, and Sushant, who are constantly working in the background to help all of you to attend these workshops. So thank you to the team. So introducing the panelists from Enable India, we are joined by Ms. Ritu Panna Sarangi. She has a long experience of working in the sector, in the disability sector, in the NGO sector, and she currently represents the Enable Vision branch of Enable India. तो आज हमारे साथ कैरियर्स के बात करने के लिए Enable India से मिस रितु पन्ना सारंगी जुड़े हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है एनजीओ सेक्टर में काम करने का, डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने का, और वो फिलहाल Enable Vision जो एक पार्ट है Enable India का उसकी मेंबर है वो टीम की, और वो आज हमसे कैरियर्स के बारे में बात करेगी। So let's invite Ritu over to you. Please come. Thank you, sir. Good morning. You, sir. Good morning. Good morning, everyone. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अवेयरनेस सेशन या जो सेगमेंट है हमारा इसमें आने के लिए। It's so good to see the numbers rising, participants number rising. You know, मैं तब से देख रही हूँ 112, 13, 14. So it's so good to see, and you know, it's really encouraging for me to see the numbers rising, and so many people are there today on a Sunday to, you know, take part in this segment. So welcome all of you on behalf of Bookshare and Enable India. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रितु परना है और मैं Enable India से हूँ, जैसे कि सर ने अभी बताया। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश सेगमेंट के बारे में, विच इज अबाउट करियर। लेकिन उससे वहाँ जाने से पहले मैं आपको सबको थोड़ा सा बस Enable India के बारे में बताना चाहूँगी। I would like to introduce Enable India to you. Most of you know that Enable India is Bangalore-based organization, but we work across the country.
हम लोग बैंगलोर में स्थित हैं, लेकिन हम पैन कंट्री, पैन इंडिया काम करते हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है ये है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ दिशा दिखाते हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स सच एज ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग एंड बहुत सारे अदर स्टेप्स के थ्रू। So Enable India पिछले 20 साल से काम कर रहा है, as you all know, and one of our major जो program है that is Enable Vision program, where we train persons with vision impairment with digital literacy training, advanced employability training, and make them ready for jobs in various sectors. तो आज जो हम बात करेंगे वो है करियर के बारे में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है करियर, और करियर के बारे में बात करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूंगी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है जो किसी बहुत ही फेमस वर्ल्ड लीडर ने कहा है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट थ्रू योर करियर। इसका मतलब कि अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना फ्यूचर को अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पहले करियर पे ध्यान दें, करियर बनाएं। तो ये जो करियर शब्द है, ये जो करियर वर्ड है, व्हाट इज इट, व्हाट डू वी मीन बाय दिस करियर? और ये सिर्फ किसी लोगों के लिए नहीं होता है करियर, या सिर्फ मुझ में या आप में नहीं होता है कि हमें अपना करियर बनाना है। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ एवरी एस्पेक्ट, दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हु वी आर, हम कौन है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से, कौन से स्टेट से है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। हम सबका एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव अ एस्पिरेशन टू हैव अ करियर। नाउ व्हाट इज करियर? इट इज नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ये कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि भाई हाँ ये कर लिया तो हमने अपना करियर बना लिया। इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी, एक सफर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है, which gets built over through the right kind of learning, exposure and experience. तो ये करियर कैसे बनता है? ये सालों की मेहनत जो हम सीखते हैं लोगों से, या किसी भी ट्रेनिंग से, किसी भी शिक्षा से जो हम सीखते हैं, जो हम लर्निंग हासिल करते हैं, या एक्सपोजर जो हमें मिलता है इन वेरियस ट्रेनिंग से, या हमारे एजुकेशन से, या लोगों से बातचीत करने से, लोगों से मिलने जुलने से, या जो अनुभव हमें मिलता है, जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, उससे हम अपना करियर बनाते हैं। और करियर बनाने का उससे भी पहले आता है, उसका ओरिजिन होता है एस्पिरेशन से। अब एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकांक्षाएं। सो करियर एक्चुअली स्टार्ट्स विथ aspirations. Now what is aspiration? Aspiration is the hope or the ambition which help us to achieve something. It's the strong desire. वो अंदर एक जुनून होता है ना कि इसे तो हासिल करना है, इसको तो ऐसे करना है ना, वो हम सबके भीतर होता है। तो एक्चुअली करियर स्टार्ट होता है कि हाउ डू वी एक्चुअली हैव, व्हाट काइंड ऑफ एस्पिरेशंस वी हैव फॉर आवर करियर। और एस्पिरेशंस एंड अवेयरनेस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम करियर बनाने की बात करते हैं तो बीच में एक ब्रिज आ जाता है, एक गैप आ जाता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में एस्पिरेशंस ले, थर्ड स्टेप में अगर करियर ले, तो बीच में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अवेयरनेस, द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी शुड हैव इन बिल्डिंग अ करियर। सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप? ये जो आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं, ये जो इतनी हम बातें करेंगे करियर के बारे में, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? इसका उद्देश्य क्या है? We want to build hopes and aspirations for career through the right kind of information. हमें अपने होप्स बढ़ाने हैं, उम्मीद बढ़ाने की कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्या है अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड है, तो क्या है अगर हम पर्सन्स विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है। इफ वी हैव होप्स, अगर हमारी आकांक्षा है, अगर हमारी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, एस्पिरेशंस है, with the right kind of information and awareness, we can definitely build a career. Now awareness plays a very crucial role in giving shape, जो हमें डायरेक्शन देता है, दिशा देता है अब करियर बनाने के लिए। सो ये जो आज का जो वर्कशॉप है, दिस वुड बी अ वेरी बेबी स्टेप। ये बहुत ही छोटा सा स्टेप रहेगा टू फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं, किस तरीके का शिक्षा या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण गेन कर सकते हैं टू कार्व आउट अ करियर।
नाउ व्हाई इज करियर इंपॉर्टेंट? हम सबके लिए करियर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हमारे अपने अपने रीजंस होते हैं. आपके रीजंस कुछ और होंगे. आई हैव माय ओन रीजंस. मुझे क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी को समाज में अपनी पहचान बनानी है, किसी को लाइक सेल्फ रिलायंट होना है, या किसी को फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करना है. सो वी ऑल हैव आवर ओन रीजंस टू हैव आवर करियर. लेकिन करियर बनाने के लिए वी शुड हैव आवर सेट गोल्स. अब गोल्स क्या है? गोल्स है लक्ष्य, जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो हम विथ टाइम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं. तो दीज आर आर स्मॉल गोल्स टू रीच टू अचीव गुड रिजल्ट्स इन एग्जाम. या हमें इंग्लिश अच्छी सीखनी है, सो दीज आर आर स्मॉल गोल्स. या हमें कंप्यूटर्स अच्छी सीखनी है, या we want to learn how to use a cane to walk independently for visually impaired. So that would be our goal in life कि हम तो mobility में अच्छी तामील लेंगे, अच्छी प्रशिक्षण लेंगे, अच्छे से सीखेंगे कि how with the help of a cane I can walk independently. So these are like small goals we all set for ourselves to achieve our ambition and carve out a career. Now setting up a goal is not इनफ. अगर हम ठीक है, हम अपना भाई ये तो हमारी लिस्ट ऑफ गोल्स है, लेकिन क्या हम इसमें फोकस्ड हैं? क्या हम इसको एक्चुअली में इसके तरफ बढ़ रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं इसको पाने के लिए? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. what are we trying to achieve that goal? What are the steps that we take to achieve that goal? For example, आप सबने हिस्ट्री, हम सबने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल कॉलेजेस में, तो एक छोटा सा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल. जब हिटलर का शासन हुआ करता था जर्मनी में, दिस इज ड्यूरिंग 1930 और 1940, ड्यूरिंग 1930s and 1940s when Hitler was ruling in Germany. So he went against Jewish for some political reasons. तो वो सारे ज्यूइश को अपने कंसंट्रेशन कैंप में कैद करके रखा था, और बहुत ही टॉर्चर से वो ज्यूइश जो भी लोग हैं बहुत ही टॉर्चर से गुजर रहे थे. हम और आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज एंड द काइंड ऑफ टॉर्चर दैट दे वर गोइंग थ्रू, लाइक फिजिकली, इमोशनली उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा था. उनमें से एक आदमी था जो चाहे उसको जितना भी तकलीफ वहां हुई हो, लेकिन वो हमेशा सोचता था, उसका एक हमेशा गोल था कि मैं भाई यहाँ से किसी दिन ना किसी दिन तो निकलूंगा, मैं किसी ना किसी दिन तो अच्छा खाना खाऊंगा, होटल में जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, I will also have a good life, I will also get my own freedom, someday I will reach there, someday I will have this thing for my own life, किसी ना किसी दिन तो मुझे यहाँ से आजादी मिलेगी. तो चाहे जितने भी टॉर्चर या जितने भी मुश्किलें उनके लाइफ में आई, लेकिन ही हैड दिस गोल वेरी फिक्स्ड इन हिज लाइफ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बिलीव था. और हुआ क्या? एट द एंड व्हेन only 6 people got out of this concentration camp, ये एक हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी बात है, he was one of them. तो you can imagine the power of goal that we set for ourselves. अगर गोल बड़ी हो, अगर जुनून हो, अगर उसको पाने की strong desire हो, then we can actually reach towards our career. लेकिन वो one jump में तो होता नहीं है. उसके लिए we have to take several steps. We have to go through the entire journey. एक पूरी journey, एक पूरी सफर हमें हमें वहां से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज सीखने पड़ते हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. So these are just small examples I'm trying to give you so that it will help you trigger your thoughts कि when we hear to live examples, to human stories, that actually हमें वो अपने साथ relate करने में बहुत ही आसानी होती है. एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सिली है, लेकिन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग बिहाइंड इट. मान लीजिए मैं आपको, आज संडे है, तो हम आपसे मिले और मैं आपको एक चॉकलेट दी, छोटा सा टॉफी, और मैंने कहा कि फ्रेंड, पुट दिस इनसाइड योर, क्लोज इट, टेक इट इन योर हैंड एंड क्लोज योर फिस्ट. आप अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए एंड देन ट्राई टू ईट द चॉकलेट. आप तो सोचेंगे ये क्या पागलपंती है भाई, ये कौन सा तरीका है चॉकलेट खाने का? तो लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, आपको ऐसा ही चॉकलेट खाना है. आप बिना मुट्ठी खोले, बिना अपने उंगलियां खोले, आप उस चॉकलेट को रैपर से निकाल के खाइए. That is your goal. That is your goal to have the chocolate, to swallow the chocolate. लेकिन आप जितने भी कोशिश कर रहे हैं, आप जितने भी ट्रायल मार रहे हैं, लेकिन that is not helping you out because you are not taking the right steps. So what are the right steps? You will ultimately open your fingers. 1, 2, 3. फिर आप चॉकलेट को हाथ में लेंगे,
रैपर खोलेंगे, चॉकलेट को मुंह में डालेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, टेस्ट लेंगे, एंड देन यू स्वॉलो योर चॉकलेट. So this is a very small silly example, but then imagine अगर हम एक छोटा सा टॉफी खाने के लिए we have to follow certain steps, then imagine the kind of steps that we need to take for achieving our goal. Now there are more important stories. The reason I am giving you stories example is आज मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इट विल हेल्प यू रिलेट टू योर ओन स्ट्रगल या योर ओन जर्नी. आप अपने लाइफ की जर्नी के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड द एंटायर जर्नी बेटर. तो मेरे कुछ साथी हैं इनेबल इंडिया के, मैं आप इमीडिएट एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो मैं रोज देखती हूँ. मेरे साथी हैं जिनका नाम मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि उनका परमिशन मैंने नहीं लिया है. उनका नाम है महेश. वो उत्तर प्रदेश से है और ही इज अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन. वो व्हील चेयर यूज करते हैं. जब वो छोटे थे अपनी चाइल्डहुड के टाइम पे वो अपनी मम्मी को देखते थे कि वो लोग गांव में रहते थे, तो दे वर स्टेइंग इन अ विलेज in UP and he used to see his mother carrying buckets of drinking water, you know, from a distant place. वो उनको काफी चलना पड़ता था. She used to walk a lot. She used to work really hard to get some safe drinking water for her kids. And उसके बाद you know how Indian mothers are, how Indian ladies are, they take care of their children, they take care of the home. तो बहुत सारे काम होता था, सिर्फ पानी भरना या वो नहीं, बहुत सारे काम होता था. और महेश का देखभाल करना, क्योंकि वो व्हील चेयर में रहते थे, वो ज्यादा अपने आप को हेल्प नहीं कर पाते थे, तो उनकी सारी जो उनका देखभाल करना, घर के कामकाज. तो एक दिन महेश को लगा कि ये हो क्या रहा है, why is my mom, you know, why is my mother वर्किंग सो हार्ड, और उनको एक मतलब पानी लेने के लिए इतना दूर चल के जाना पड़ रहा है. सो इट जस्ट यू नो ही वाज रियली हेल्पलेस, ही वाज रियली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. तो एक दिन उनको लगा कि भाई ऐसा तो नहीं चलने वाला है, आई नीड टू हेल्प माई ओन सेल्फ. सो उन्होंने तरीका ढूंढा, उन्होंने जानकारी ली अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली से हेल्प ली. एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज you know he actually started studying hard. तो उन्होंने तालीम हासिल की, उन्होंने ट्रेनिंग्स लिया, उन्होंने शिक्षा लिया, कॉलेज गए. एंड देन उनका वो जो जुनून था कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, आई वॉन्ट टू सेट अप अ ट्यूबवेल एट माई ओन होम, आई वॉन्ट टू हैव ऑल द फैसिलिटीज, all the basic facilities at my own home, so that none of my family members will ever have to walk so long, कि मेरे कोई भी फैमिली मेंबर को इतना दूर नहीं चल के जाना पड़े. Second example, the reason I'm giving you these examples, I'll tell you later. एक और एग्जाम्पल है, मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, नवीन करके. वो आज के डेट में इनेबल इंडिया में सीनियर स्पेशलिस्ट ट्रेनर है. तो नवीन इज अ लो विजन पर्सन और वो कर्नाटका के ही हैं. जब वो छोटे थे तो वो देखते थे कि उनके पापा उनके पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, ना स्कूटर, ना बाइक, ना कार, ना कुछ नहीं. तो उनके पापा चल के जाते थे गैस सिलेंडर लेने के लिए. एंड जब भी गैस सिलेंडर घर में खत्म हो जाता था तो काफी दूर चल के जाते थे. एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेनस जॉब, इट्स नॉट इजी, हम सबको पता है इट्स नॉट इजी अ जॉब. तो उनको हमेशा लगता था कि अरे मैं क्यों नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, व्हाई आर दे नॉट अलाउइंग मी. तो अगर भी इफ ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर तो सब बोलते थे कि नहीं नहीं तुम गिर जाओगे. यू नो दे फैमिली कंसर्न रहती है कि नहीं तुम गिर जाओगे या यू नो तुम हेल्प नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें कौन संभालेगा, पापा को तुम्हें संभालना होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दिस फ्रस्ट्रेशन स्टार्टेड बिल्डिंग अप. उन्हें बहुत ही मतलब लगता हेल्पलेस लग रहा था. तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आई नीड टू फोकस ऑन माई करियर, आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज टू समडे अर्न मनी एंड गेट माई फादर अ व्हीकल. तो आज की तारीख में ऑल्दो उन्होंने अपने लिए काफी ही नाम कमाया है, वो आज की तारीख में सेक्टर में काफी अच्छे से जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, बिकॉज ऑफ हिज यू नो टैलेंट. लेकिन वो पैसा भी कमाए, सेविंग्स भी किया उन्होंने, और आज की तारीख में उन्होंने घर में वो सारी सुविधाएं दी है जो वो उनको लगता था कि नहीं हो पा रहा था. नाउ ही इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिली इनकम, और उन्होंने अपने पापा को गाड़ी भी खरीद के दी. थर्ड जो एग्जाम्पल है ये है हमारी एक और ट्रेनर है सुशीला. शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सुशीला असम से है. तो नॉर्थ ईस्ट से वो आई, वो उनका भी चाइल्डहुड काफ़ी ही डिफिकल्टीज से गुजरा. उनकी मम्मी को बाहर काम करने जाना पड़ता था, एंड सो दे हैड टू यू नो स्ट्रगल अ लॉट टू अर्न मनी ऑल्सो फॉर
फॉर डेली लिविंग एंड ऑल। तो उसने भी सोचा कि नहीं यार, ये तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है, मुझे तो कुछ करना ही होगा, आई नीड टू हेल्प माई मदर, आई नीड टू हेल्प माई फैमिली। तो शी केम आउट ऑफ हर कंफर्ट, जो आइसोलेशन जो उन्होंने अपने आप को बांध के रखा था, शी टुक द फर्स्ट स्टेप, शी स्टार्टेड बीइंग करेजियस। वो गई, वो केरला में ट्रेनिंग ली। आप सोच सकते हैं हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर someone coming from northeast to Kerala, because there are so many differences, right? There are so many different culture, different language, different people. So she overcome all those difficulties, did her training in Kerala. Now she is one of our best computer trainer in Enable India. And the final example which I would like to give you is about my own manager. उनका नाम मोसेस चौधरी है। आज की तारीख में everyone knows him in the sector. He's a big name now because he has earned this name. उन्होंने काफी मेहनत की है इस नाम को कमाने के लिए। So when Moses was in his childhood, तो he was a very average student. वो हमेशा बोलते थे कि I never liked studies, I was more into sports, I was more into extracurricular activities, I was a very average student. मुझे इतनी पढ़ाई में इतनी दिलचस्प नहीं थी। लेकिन उनकी मम्मी उनको रात, मतलब दिन का पूरा काम करने के बाद रात को उनको बिठाकर सारे जो उनके एकेडमिक बुक्स हैं, जो करिकुलम में जो भी उनके स्टडी रिलेटेड बुक्स हैं, उनको पढ़ा के सुनाती थी। मोसेस इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, तो हिज मदर यूज्ड टू हेल्प हिम अ लॉट। तो एक दिन उनको लगा कि मेरी मम्मी अरे दिन भर काम करती है, रात को मेरे साथ बैठती है, शी इज टीचिंग मी, शी इज रीडिंग आउट ऑल द बुक्स टू मी एंड शी इज गेटिंग सो टायर्ड। एंड तो उनको लगा कि ये ऐसा नहीं चलने वाला है, आई नीड टू take a step now, I need to actually help myself. So he started studying hard. वो उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने अपने 10th और 12th examinations में he was a topper. Then he went for his higher studies. The best part is when he joined Enable India, जब वो Enable India join किए, he joined as an intern. और उनकी तनख्वाह कुछ 5-6 हज़ार की थी। And today I feel so proud to tell all of you, मुझे इतनी गर्व महसूस होती है जब मैं सबको बताती हूँ कि जो मेरे मैनेजर है today from an intern over the period of time, इन पिछले 10 सालों में today he is the program director of Enable India. और मेरे अपने तजुर्बे से मैं आपको बता रही हूँ, इस सेक्टर में ठीक है प्रोग्राम डायरेक्टर्स बनते हैं, they go through their own journey, उन्होंने काफी हासिल भी किया है, अपने लिए मेहनत भी किया है। लेकिन मोसेस एक ऐसे शख्स है जो दो प्रोग्राम्स के डायरेक्टर है, एंड दिस इज रियली अनयूजुअल, ये काफी मतलब बहुत बड़ी बात है। सो द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज स्टोरीज इज देयर वाज दिस ड्राइव, इनमें सब में एक जुनून थी विच वाज लार्जर देन देयर ओन चैलेंजेस। जो उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किया था, इट वाज मच लार्जर देन देयर ओन सेल्व्स और देन देयर ओन चैलेंजेस। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि कल सुबह से उठ के योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज द गोल दैट वी सेट फॉर आवरसेल्व्स। बट व्हाट वी डू, हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और सो जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फिर कल से करेंगे। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, आवर गोल रिमेन्स स्टेज वेरी स्मॉल। हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, हमारे चैलेंजेस या हमारे कंफर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और गोल छोटे आकार में रह जाता है। इसलिए वी आर नॉट ट्राइंग टू be there. So in all these examples, why I gave you various examples, क्यों हमने आपको इतने सारे examples दिए, is you can see that the drive, जो गोल को पाने का जो जुनून था, that drive, the desire was much larger उनके comforts या challenges से। Now हमने पता कर लिया ठीक है करियर कैसे होता है, गोल सेट करने पड़ते हैं, और अगर करियर सेट करना हो तो हम कहाँ काम कर सकते हैं। So आपके पास 3 options हैं। नॉर्मली चाहे आपके पास हो, हमारे पास हो, कहीं पे भी अगर आप जाएं, कहाँ हम काम कर सकते हैं, कहाँ हम करियर बना सकते हैं, देयर आर 3 बेसिक ऑप्शंस दैट वी ऑल नो, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इन तीनों सेक्टर्स या तीनों ऑप्शंस में इनकी अपनी एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हम खुश हो जाते हैं ना, अब देखते हैं पड़ोस में अरे सरकारी नौकरी मिल गई, चलो लड्डू बांटो, बिकॉज देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी, देयर इज अ जॉब स्टेबिलिटी। हम सबको पता है अरे गवर्नमेंट सेक्टर में बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, यू गेट पेंशन, कहीं कहीं तो सरकारी क्वार्टर भी मिल जाते हैं, घर भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि लिमिटेड स्कोप होता है और एक टाइम पे इतने सारे
लोगों को गवर्नमेंट ले नहीं सकती है, एंड देन योर स्किल्स में नॉट बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। जो आपका तजुर्बा है, जो आपके स्किल्स है, कौशल है, मे बी दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सबके कहने का मतलब ये है कि देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ऑल दीज ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज स्वरोजगार, जो हम बिजनेस करते हैं। तो लेकिन ये पैशन ड्रिवन होता है, यू नो, ये आप अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशंस में कर पाएंगे आपको, लेकिन इसके भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि ये रिस्की है, भाई चलेगा या नहीं चलेगा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आपको सिक्योरिटी पता नहीं है कि नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन हम देख भी रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउस, चाहे आपके टाटा, बिरला, अंबानी, इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, चाहे आप छोटे से दुकान, किराना दुकान ले लीजिए या टेलर शॉप ले लीजिए, अगर वो सही मायने में अपना बिजनेस अपने असेसमेंट या रिसर्च करके कर रहा है तो उसका बिजनेस भी चल पड़ता है। सो देयर आर वेरियस वेज एंड वी नीड टू लर्न ऑल दिस स्टेप्स। लेकिन आज की तारीख में विद द कोविड सिचुएशन अराउंड, आप देख रहे हैं हम सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसीलिए आज की तारीख में हम ऑनलाइन, ये जो वर्कशॉप भी हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। तो जो विद द कोविड सिचुएशन अराउंड, वी सी देयर इज अ डिप डाउन इन गवर्नमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑप्शंस। कुछ बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट हाँ, क्योंकि कुछ चीजें चेंज हो रही हैं और चेंजेस में हमेशा कुछ चीजें ऊपर जाती है, कुछ चीजें नीचे जाती है। देन देयर कम्स द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि हम सबको पता है तनख्वाह अच्छी मिलती है, फाइनेंशियली इट्स वेरी फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, करियर प्रोग्रेशन के लिए अच्छा मौका है, आपकी जो स्किल्स है, जो कौशल है, वो अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं। एंड द बेटर यू परफॉर्म, द हायर विल योर ग्रोथ बी। आप जितना अच्छा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका करियर प्रोग्रेशन उतना अच्छा होगा। यू विल गेट गुड एक्सपीरियंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी यू गेट सो मच ऑफ बेनिफिट्स, लाइक आपको तो किसी ऑफिस में जिम भी होते हैं, प्ले यू प्ले, यू हैव स्पोर्ट्स ऑप्शन, आपके लिए इंश्योरेंस रहता है। देयर आर ऑप्शंस कि आप अपने प्राइवेट आपके कंपनी के स्टॉक को भी खरीद सकें। सो ऑल दिस ऑप्शंस, ऑल दिस सेक्टर्स हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट today we will be mostly focusing on private sector because हमारा तजुर्बा है, इनेबल इंडिया का तजुर्बा है कि प्राइवेट सेक्टर में करियर प्रोग्रेशन के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। आपको ये बता दूं कि जो इनेबल इंडिया है, we have been successfully, we have successfully opened up 291 job roles exclusively for persons with disabilities. हमने वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि लगभग 25 से 27 सेक्टर्स में 291 जॉब रोल्स क्रिएट किए हैं exclusively for persons with disabilities, and for persons with vision impairment we have 180 plus job roles identified in various sectors. अब ये sectors कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका हो गया आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में कौन कौन से कंपनीज, फॉर एग्जांपल जैसे सिस्को हो गया, आईबीएम हो गया या गूगल हो गया। आईटीईएस सेक्टर में जैसे आपका कॉग्निजेंट में हो गया, पेटीएम में हो गया, जो एनेबल्ड सर्विस सेक्टर है, आईटी का एनेबल्ड सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पे भी काफी जॉब रोल्स हमने with our experience we have opened up various job roles. एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए आप, एचआर सेक्टर में ले लीजिए, मीडिया सेक्टर में, फाइनेंस में, बैंकिंग में। सो ये सब job roles, we have been able to create these job roles. Now I'm sorry, before moving ahead to discuss any kind of job roles, जो आज हम आपको बताएंगे ये एक झलक होगा। This would be like a film trailer. हम आपको पूरी फिल्म नहीं दिखाएंगे, रीजन बीइंग क्योंकि अगर हम ये जो पूरी फिल्म दिखाने का प्रोसेस है, अगर हम पूरी करियर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, पूरा जो भी जॉब रोल्स है उसके बारे में बात करेंगे, तो दिस इज एक्चुअली अ 2 days प्रोसेस, 2 days का जर्नी है। 2 दिन लगते हैं इसको हमें बताने में, सिखाने में। तो आज ये जो छोटा सा झलक है, इसमें हम कुछ एंड में जॉब रोल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उस जॉब रोल्स को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी जॉब सिलेक्ट करने से पहले व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कि भाई उठे, आज नींद से उठे, कल कुछ ट्रेनिंग ले लिया, परसों जॉब ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो नहीं होता है। देयर हैज टू बी अ वे, देयर हैज टू सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज हमारी इंटरेस्ट या चॉइस।
हमें किस लाइन में जाना है, किस फील्ड में काम करना है। अब मान लीजिए आप, जैसे बहुत ही कॉमन से एग्जांपल, लता मंगेशकर को हम अगर क्रिकेट खेलने बोलते या सचिन तेंदुलकर को गाना गाने बोलते तो कितना बड़ा झोल हो जाता है, राइट? इट वुड हैव, सो देयर इज बेसिकली नो मैच बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड योर स्किल सेट्स, राइट? तो जिसमें हम इंटरेस्ट है पहले उसको पहचानेंगे, क्या हमारा इंटरेस्ट है, हम किस लाइन में जाना चाहते हैं। सेकेंड इज योर स्किल सेट्स। नाउ व्हाट आर स्किल सेट्स? स्किल सेट्स आर योर हुनर, क्या योग्यताएं हैं, व्हाट इज योर कौशल, यू नो, व्हाट आर योर स्किल सेट्स। एंड स्किल सेट्स जो होता है, जो स्किल्स होते हैं, दैट गेट्स बिल्ट ओवर विद द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग। सो ये ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में आप कुछ स्किल्स सीख जाएं, या 3-4 दिन कहीं गए सीखने के लिए एंड देन यू लर्न हाउ टू acquire some skills. नहीं, it is a process. So that's why we give trainings to help you acquire these kind of skills. Third is your attitude and confidence. अगर आपका रवैया ही गलत है तो आप तो काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो 10 बजे तक सोऊंगा, चाहे मेरी ऑफिस 8 बजे खुले या 8 बजे से काम हो, तो वो एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये 3 आपके लाइन में आ गए, इफ यू हैव बैलेंस्ड योर इंटरेस्ट एंड चॉइस, योर एटीट्यूड एंड योर स्किल सेट्स, देन you are actually ready to take up the path in making your career. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें हम एक्चुअली फोकस करते हैं वो है टू बिल्ड द राइट स्किल सेट्स। नाउ व्हाट आर स्किल्स? जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हो गया आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब किस तरीके से आप बातचीत करते हैं, किस तरीके से आप नेगोशिएट करते हैं, किस तरीके से आप तर्क विचार करते हैं, आपके आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं काम में। देन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, जैसे किस तरीके से क्रिएटिवली आप अपने किसी भी प्रॉब्लम या समस्या का हल निकालते हैं। एंड देन यू हैव योर लेट्स से योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्या आप में उतना कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए एंड पूरी टीम के लिए डिसीजंस ले सकें, फॉर द बेटरमेंट एंड बेनिफिट ऑफ योर एंटायर टीम जहां आप काम कर रहे हैं। सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ स्किल्स। नाउ स्किल्स क्यों जरूरी है? There are 3 major aspects. Why do we actually need this, to build our skills? Because we as persons with disabilities need to be in power with persons without disabilities. तभी ना हम वहां पे काम कर पाएंगे. There may be some variations here and there, but we also have to be, efficient, productive and competent. क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है आप देखेंगे कि यहाँ लोग कितने एफिशिएंट है, कितने फटाफट काम करते हैं, कितने प्रोडक्टिव है, इतने कम टाइम में इतना रिजल्ट्स, कितने कॉम्पिटेंट है, बहुत कंपटीशन रहता है इस सेक्टर में। तो ये स्किल्स आपको इसीलिए सिखाया जाता है ताकि यू आर इन पार, आप अपने जो दूसरे साथी हैं, जो दूसरे पीयर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके लेवल पे आके काम कर सकें। you have to be equally efficient, you have to be equally productive and you have to be equally competent as well. Now I think we should start discussing few job roles. Homer sir, आप please screen share करेंगे? Meeting controls window. More. Split button. Menu. Menu. Chat. Pause. Stop recording. Meeting info. Hide floating meeting. Share computer sound. Check. Sir, थोड़ा सा सेंटर में लाइए स्क्रीन को, because it's I can't see the first column, sir. हेलो, तो अभी जो हम आपको बताएंगे जॉब रोल्स के बारे में, दीज आर सम बेसिक जॉब रोल्स, जैसे कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। सम बेसिक जॉब रोल्स जैसे कि हेल्प डेस्क रोल। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारे जॉब रोल्स है जो आपके हमने लिस्ट आउट किया है 183 जॉब रोल्स,
तो ये आपको मिलेगा हमारे एनेबल इंडिया के एकेडमी पेज में और आपको लिंक शेयर किया जाएगा। तो मैं आपको सब बेसिक सा बता रही हूँ ताकि आप जब वो पेज में जाए यू नो हाउ टू नेविगेट, क्या क्या चीज आपको वहां देखने के लिए मिलेगा, हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ जॉब रोल। जब हम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम स्किल सेट्स के बारे में इतना उसमें एम्फेसिस कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा टेबल जो है ये बताएगा कि हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड योर जॉब रोल, क्या चीज चाहिए आपको। या परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू। सो द फर्स्ट जॉब रोल बहुत ही आप सबने सुना होगा, हेल्प डेस्क। जो हेल्प डेस्क होता है बहुत ही कंपनीज में होते हैं, बहुत ही ऑफिसेज में होते हैं। सो ये बहुत सारे सेक्टर्स में आपको हेल्प डेस्क का काम आप देख सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हेल्प डेस्क अभी जो जॉब रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनका जो रोल है, ये काम करते हैं, ये दे ट्राई टू अटेंड कॉल्स ऑन डिफरेंट क्वेरीज, यू नो कैंपस हायरिंग में काम करते हैं। जो लोग पढ़ाई करते हैं वहां से जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, इसके बारे में ये लोग काम करते हैं। एंड देन दे यू नो कॉन्स्टेंटली ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं। There's a lot of coordination work which gets into the picture. इनके listening और skills में इनके listening and comprehension skills बहुत ही शानदार होनी चाहिए, उनकी communication skills बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, and उनको phone में बहुत लंबे समय तक बात करनी होती है, तो उसका तजुर्बा और उसकी skill होनी चाहिए। and इसके लिए जो qualification है, that has to be a degree pass. And then both your low vision and visually impaired can get into such kind of jobs. Page scroll down kijiye please. Then the next is help desk, let's say in hospitality sector, hotels, help desk, आप किसी भी होटल में जाएंगे वहां पे एक हेल्प डेस्क होगा, तो वहां पे आप कस्टमर्स के साथ बात करने के लिए या कोई भी समस्या है कस्टमर को या कुछ भी हेल्प चाहिए, तो इन सब चीजों में आप ये हेल्प डेस्क का रोल आप निभा सकते हैं। एंड देन इसमें जैसे कंप्लेंट लेने की स्किल्स होनी चाहिए, देन रिटन एंड वर्बल इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। आप ऐसे किसी से गुस्से में तो बात नहीं करेंगे। अब आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर में हैं, तो आपका यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी वेल। तो ये सारी छोटे छोटे स्किल्स हैं, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स हैं दैट यू नीड टू हैव। एंड इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड इज SSLC, एंड लो विजन लोग ये अच्छे से कर पाते हैं। देन अनदर रोल इन हेल्प डेस्क इज where you are into basically customer service attendant. Like चैट में आप देखेंगे, कोई भी आजकल हम पेज खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्काई ले लीजिए या योर एयरटेल का कोई भी पेज ले लीजिए, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या क्या हो सकता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो साइड में एक चैट बॉक्स पॉपअप होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हेल्प डेस्क जॉब रोल। तो इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यू टू एक्चुअली हैव टाइपिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दैट इज डिप्लोमा। ये लो विजन और विजुअली इम्पेयर्ड दोनों इक्वली ये काम कर सकते हैं। देन अनदर हेल्प डेस्क इज इन कंपनीज लाइक IBM or Mphasis, they have a customer support executive which is actually focusing on the email support. तो हम मेल करते हैं ना कि भाई हमारा ये काम नहीं कर रहा है, व्हाट टू डू, हमें एयरटेल बिल पेमेंट मेरा नहीं हो पा रहा है, या कुछ रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, या आपको कुछ एक्सचेंज करना हो। सो ये जो ईमेल्स में जो आप हेल्प लेते हैं, that is called help desk through a customer service support executive which is primarily working through email support. इसके लिए भी आपको रीडिंग, कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, और ये दोनों LV आई मीन लो विजन एंड विजुअली इम्पेयर्ड ये काम कर सकते हैं। एक और बेसिक्स जॉब रोल है which is accounting. ये भी मल्टीपल सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कंपनीज लाइक ANZ बैंक हो गया, आपके एक्सेंचर कॉर्पोरेट्स में हो गया, तो आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स असिस्टेंट का रोल निभा सकते हैं। और इसमें भी आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो फील्ड की अकाउंट्स की जो नॉलेज वो होनी चाहिए, या आपको टैली आना चाहिए, या आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर्स में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। So these are all basic, skills that you need to have a job in accounting.
देन आपका हो गया अकाउंट्स, एग्जीक्यूटिव रोल आप निभा सकते हैं, उसमें भी आपको डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स, बेसिक मैथ्स स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. सो दीज आर फ्यू जॉब रोल्स इन अकाउंटिंग. ये आप BFSI बैंकिंग सेक्टर में भी इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. देन आपका आ गया रिक्रूटर. रिक्रूटर इज HR सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स सेगमेंट में जो काम होता है. अगर आपको टैलेंट एक्विजिशन का काम है या कोऑर्डिनेशन का काम है, तो आप के पास कैसे किस तरीके के स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एनालिटिकल स्किल्स हो गया. तो ये स्किल्स अभी भारी भरकम वर्ड लग रहा है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा. ये आपको हम एक टाइम ऐसे बता देंगे तो यू विल नॉट गेट टू नो मे बी, बट यू विल ओनली गेट टू नो व्हेन यू गो थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग, व्हेन यू लर्न अबाउट द स्किल्स, एंड दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. देन आप ट्रेनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, ट्रेनिंग इन एजुकेशन सेक्टर या ट्रेनिंग इन NGO सेक्टर. जैसे आपको पता है हमारे एनेबल इंडिया में इतने एफिशिएंट और टैलेंटेड कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं, तो आप इसमें अपना लाइन करियर बना सकते हैं. या एजुकेशन किसी भी कॉलेजेस में, या बहुत सारे आजकल कॉर्पोरेट्स में भी दे आर गिविंग ट्रेनिंग. तो ये फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको कंप्यूटर स्किल्स का जानना बहुत, दैट इज द कोर. आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है. उसके बाद आप BPO में भी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे कंपनीज हो गया आपके, IBM दक्ष हो गए, या 24/7 हो गया. तो इस सब के लिए आप ट्रेनिंग लाइन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. स्किल्स चाहिए जैसे कि आपको इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू अंडरस्टैंड योर टीम. आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, किसी के स्ट्रेंथ्स होंगे, किसी के वीकनेस होंगे. तो हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द एबिलिटीज एंड इनएबिलिटीज ऑफ योर कैंडिडेट्स, एंड देन हेल्प देम आउट टू perform better in their entire training or journey. So these are the basically the qualities and the skills that a trainer need to have. Then another बहुत ही यूनिक सा रोल है, विच इज वी कॉल इट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर. हमारे यहाँ पे भी है. एंड देन देयर आर दिस फील्ड इज एक्चुअली बूमिंग नाउ. इसमें काफी स्कोप है. एक्सेसिबिलिटी टेस्टर वो होते हैं जो अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है, तो दीज पीपल दे चेक इफ इट इज एक्सेसिबल और नॉट. चाहे किसी के लिए भी हो, किसी भी डिसेबिलिटी सेक्शन के लिए हो या किसी के लिए भी हो, इफ इट इज एक्सेसिबल और नॉट. सो दीज आर कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स और एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट और एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स में भी. तो किस तरीके का सेक्टर्स में ये हो सकते हैं? ये आपके IT सेक्टर्स में हो सकते हैं, ITES सेक्टर में हो सकते हैं, BFSI सेक्टर में हो सकते हैं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है वहां पे हो सकते हैं. और किस तरीके का कंपनीज इन्हें हायर कर सकती है, जैसे कि कॉग्निजेंट हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगे, Oracle, SAP, आपके याहू, विप्रो. सो ऑल दिस पीपल हायर सच काइंड ऑफ रोल्स. और इनके लिए भी आपको कंप्यूटर स्किल्स और कंप्यूटर स्क्रीन रीडर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. आप में से बहुत जन कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस सेक्टर में क्या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स दैट वी आर गिविंग यू. स्कोप 27 सेक्टर में है, और ये सबकी जो जानकारी है आपको हम लिंक देंगे. आप वहां से इस जानकारी के जो भी जॉब रोल्स है इन डिटेल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं. एंड देन वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट ऑल्सो इन आइडेंटिफाइंग योर चॉइसेस एंड इंटरेस्ट, और कैसे उसको मैच करना है थ्रू द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वी प्रोवाइड. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील्ड अभी आगे आ रहा है, वो हमारे इनेबल इंडिया में अभी फर्स्ट बैच ट्रेनिंग हो रहा है. इट्स कॉल्ड डिस्कवरिंग हैंड्स. नाउ डिस्कवरिंग हैंड्स किसके लिए है? ये है फॉर स्पेशली ओनली फॉर VI गर्ल्स, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है, गर्ल्स है, इनके लिए ये स्कोप है, वेयर वी एक्चुअली ट्रेन दिस women with vision impairment to become medical tactile examiners, so that they become skilled experts in early detection of breast cancer. इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 12th पास होना चाहिए, और यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स एंड मोबिलिटी. और जो भी इस इंटरेस्टेड है, हम आपको नंबर देंगे, हमारा IWA का नंबर. आप प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए अगर कोई भी महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड है. 12th पास इज द क्राइटेरिया. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड मोबिलिटी होनी चाहिए. तो बिफोर
एंडिंग दिस एंटायर थिंग मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो भी हमने आज बातचीत की है, दिस इज जस्ट अ झलक, इज जस्ट अ ग्लिम्स। ये अभी पूरा इट्स लाइक अ ट्रेलर। तो अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है, अगर हमारे करियर अवेयरनेस के बारे में, जॉब्स के बारे में या ट्रेनिंग्स के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, या आपको ट्रेनिंग लेनी है हमसे, तो आप प्लीज हमारे आईवे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा आईवे नंबर है 1800-532-0469, 1800-532-0469। ये हम चैट बॉक्स में भी ये नंबर डाल देंगे। दिस इज अ हेल्प डेस्क। ये एनेबल इंडिया में हमारा हेल्प डेस्क है, जिसको हम आईवे कहते हैं। एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट, यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू दिस नंबर। अगर आपको ट्रेनिंग के लिए जानकारी चाहिए, एजुकेशन के लिए, पेंशन, काउंसलिंग, किसी भी चीज के लिए आपको जानकारी चाहिए विच इज रिलेटेड टू विजन इम्पेयरमेंट, यू कैन एक्चुअली contact us from Monday to Friday 10 AM to 5 PM इसी नंबर पे। एक थोड़ा सा झलक आपको देना चाहूंगी, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। जब हम स्किल्स के बारे में बात करते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिए थे, कॉर्नेलियस नाम है उनका, और वो भी अभी फिलहाल स्पैम डेस्क एग्जीक्यूटिव रोल में काम करते हैं रेडिफ में। तो हम जब स्किल के बारे में काम करते हैं और ये बोलते हैं कि क्यों जरूरी है, जैसे हमने कहा था, टू मेक यू मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटेंट। तो इनका जो मेजर रोल है दिन का, ये इनको 100 मेल्स प्रोसेस करने होते हैं। ही हैज टू एक्चुअली प्रोसेस 100 मेल्स इन अ डे, और उसका टर्न अराउंड टाइम है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 seconds। तो आप सोच पाएंगे कि क्या पावर है स्क्रीन रीडर का, एंड द वे ही एक्चुअली डज हिज वर्क इज सो अमेजिंग। तो ये आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये छोटे छोटे जो भी स्किल्स हैं, इट एक्चुअली काउंट्स अ लॉट। ये इनकी एफिशिएंसी का पहचान देती है। जैसे रत्नमा, शी इज राइट नाउ वर्किंग एज अ अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करती हैं, और इनका जो दिनचर्या, इनका जो वर्क रोल है, इनको अटेंड करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल 300 से 400 कॉल्स अ डे। कैन यू इमेजिन? हम लोग 4-5 कॉल्स आते हैं दिन में, हम लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं भाई ये क्या हो रहा है, इतने सारे कॉल्स अटेंड करने। शी हैज टू हैंडल 300 to 400 कॉल्स। लुक एट द काइंड ऑफ स्किल्स शी हैज एक्वायर्ड, और टर्न अराउंड टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 minutes per call. So you can see the power they have set for themselves in setting up their goals, in progressing ahead in their career. So these are very small examples. कुछ चैट्स आ रहे हैं, क्या हम प्राइवेट बैंक्स में कर सकते हैं? आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन ट्रेनिंग्स, यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन एजुकेशन। आप अगर आपके पास सही ट्रेनिंग है, सही स्किल सेट्स है, इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड एंड योर इंटरेस्ट इज मैचिंग टू वेयर यू वांट टू गो, यू कैन डेफिनेटली हैव a career whatever you want to. And then just want to end with a very meaningful statement, because this is personally I believe in this. The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are. अगर आपको अपनी करियर बनानी है, अगर आपको वो फर्स्ट स्टेप उठाना है, देन आपको ये डिसाइड करना है कि जहां आज आप हैं वहां आप कल नहीं रहेंगे। यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप द मीटर मूविंग। क्योंकि अगर मेरे साथी महेश या मेरे मैनेजर मोसेस या सुशीला, नवीन या बहुत सारे, रत्नम्मा, कॉर्नेलियस, अगर अगर आज यहाँ पे ये लोग अपना करियर बना पाए हैं, इट्स बिकॉज दे हैव टेकन द राइट स्टेप्स। सो आई होप आई हैव जो भी मैंने आपको कहा है थोड़ा बहुत you could relate to it. Again, I will emphasize this was just a trailer, just a jhalak. So in case you want to get in touch with us, in case you want to know more about the trainings in Enable India, please reach out to us on our IWAY number, that is 1800-532-0469. Thank you, and we will take up your questions in the question answer round. Thank you so much. Have a great Sunday. Over to you, Dr. Humyar. Am I audible now? Yes, sir. Good. Thank you so much. So, दोस्तों, जो हमने सुना, शायद हमने पहले भी सुना होगा लोगों से, और आगे भी हम यही चीजें सुनते जाएंगे।
पर क्या हम इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, जिसे रितु ने बताया? क्या हम हमारी करंट पोजीशन से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या हम हमारा फोकस को थोड़ा और ब्रॉड करके गवर्नमेंट जॉब से आगे जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उसके तरफ देखना चाहते हैं, या बैठे रहना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तब करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है हमारी सोच में। गवर्नमेंट जॉब्स, रितु ने जैसे बताया, जॉब्स हमें कंटिन्यूटी मिलती है, वहां से हमें कोई निकालता नहीं है, वहां कोई ज्यादा हमारी स्किल्स की परीक्षा नहीं होती है, और वहां गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए भी हम राइटर वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम लिख लेते हैं और नसीब खुल गया तो मिल जाती है। पर ये सोचिए, हमारे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी ब्लाइंड लोगों की आबादी है, इंडिया में सबसे जो ज्यादा पॉपुलेशन है ब्लाइंड का वो इंडिया में है, अब इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स तो कहां से निकालेंगे हम? सबके सारे ब्लाइंड को जॉब मिल जाए ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब में आपको जो सैलरी मिल रही है, रितु ने बताया, उससे कई गुना ज्यादा सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो क्या हमें उसकी तरफ जाना है? क्या हमें उसकी तरफ मेहनत करनी है? क्या हमें उसे हमारा लक्ष्य बनाना है? ये एक बड़ी सोच की बात है। हम दोबारा यही कह रहे हैं, क्या हमें हमारी सोच बदलनी है? अगर जवाब उसका हाँ है तो उसके तरीके अनेक हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ी जो हमारी कमी है, रितु ने स्किल की बात करी, मैं कमी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में 99.99% ब्लाइंड राइटर के भरोसे, राइटर की मदद से एग्जाम्स लिखते हैं। हमने पहले भी कुछ वर्कशॉप में इसकी बात करी थी, आज दोबारा कर रहे हैं कि जब हम राइटर के भरोसे, राइटर के सहारे से हम लिखने की आदत डाल देते हैं, अब सोचिए इनमें से ये जो रितु ने आज जो जॉब्स बताए और जो ब्लाइंड के लिए तकरीबन 183 डिफरेंट जॉब रोल्स है जिसमें कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपको लिखना ही नहीं आता है स्वतंत्र रूप से, अगर आप एक लाइन या एक पैराग्राफ लिखने में 10-10, 15-15 मिनट निकालोगे, जिसमें भी स्पेलिंग की गलतियां होगी, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, पर जिस भी भाषा में आप लिख रहे हो उसमें स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये सब कब आएगा? जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस तब नहीं होती है कि जब आप नौकरी के लिए निकलते हो, प्रैक्टिस आपकी स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से होती है। स्कूल और कॉलेज में कैसे प्रैक्टिस होती है? क्योंकि वहां पे भी आपको लिखना है, हर रोज लिखना है, नोट्स लेनी है, जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसकी नोट्स, साइटेड जो आपके साथी है वो तो नोट्स लिख रहे हैं, तो आप भी लिखिए। कैसे लिखेंगे वो हमने पिछले वर्कशॉप में देखा था। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करोगे? कीबोर्ड लगा के करोगे। तो ये सारी बातें हमने पिछले वर्कशॉप में ही देखी थी। क्यों बताई थी? क्योंकि हम उस कड़ी को इस कड़ी से जोड़ना चाहते थे कि अगर आप स्कूल और कॉलेज लेवल से ये मेहनत नहीं करोगे और यही उम्मीद रखोगे कि आगे चल के बस हमें कोई जॉब दे दे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कुछ लोग ने चैट में पूछा, क्या हमें प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स में जॉब मिल सकता है? अब आप सोचिए, और ये एक बड़ा कड़वा सच है हमारे सामने कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे कई सारे दोस्त बैंक में जुड़ चुके हैं। 70 से 80% उनमें से लोग क्या काम करते हैं बैंक में? ये एक मंथन का सवाल है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कोई नहीं कर रहा है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिनकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी या इंश्योरेंस में भी या रेलवेज में भी, जहां भी उनको नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक उल्लेखनीय काम है, जिनको देख के लोग हैरान हो जाते हैं वहां पे कि अरे यार ब्लाइंड है फिर भी देखो कितना अच्छा कर रहे हैं।
पर 70 से 80% हमारे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? बस लगे हैं। इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि हम सब जानते हैं, हम अपने दोस्तों को देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं, उनकी हालात देख रहे हैं कि उनको एक तरस की नजर से लोग देखते हैं कि देखो ये ब्लाइंड भाई आ गए, उनका काम भी हमें करना पड़ रहा है, ये तो बैठे रहते हैं पूरा दिन। क्यों बैठे रहते? क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे 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 जो मैनेजर्स होते हैं वो भी जानते हैं कि चलो ब्लाइंड आ गया, इसको बिठाओ कोने में, उसमें स्किल है या नहीं है हमें देखना ही नहीं है। तो कई अच्छे लोगों को भी जबरदस्ती इस तरह से कोने में बिठा दिया जाता है, क्योंकि एक छवि बन गई है, एक इमेज बन गई है कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते। इमेज किसने बनाई? हम ही ने बनाई है, हमारे ही दोस्तों ने बनाई है, जिसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ रहा है। ऐसी कई सारी बातें हम कर सकते हैं। कुछ चीजों को अगर हम मुड़ के देखेंगे तो उसमें शायद दोष हमारी एजुकेशन सिस्टम का है। हम जिस संस्थाओं में, जिस स्कूल्स में, जिस कॉलेजेस में जाके पढ़ रहे हैं, कमियां वहां पे है। वहां से ही हमें ब्लाइंड के नाम पे सहानुभूति के अलावा और कुछ सिखाया नहीं जाता। हमसे उम्मीद ही नहीं की जाती है कि भाई हम भी एक साइटेड स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करें। हमें हमेशा कंसेशंस दिखाए जाते हैं। ब्लाइंड ओके, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप इसमें ठीक है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। हमेशा हमारे साथ यही बताया जाता है और ये रवैया फिर हमारे जहन में उतर जाता है। हमें यही लग रहा है कि ये रवैया हमें आगे ले जाएगा, पर ये रवैया सिर्फ हमें कॉलेज की डिग्री जैसे तैसे पास करने में मदद करेगा, बस उससे आगे नहीं ले जाएगा। साइटेड लोग में भी यही है, जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो इधर उधर कुछ ना कुछ काम करके अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। पर कम नसीबी ये है कि ब्लाइंड में ये इधर उधर वाला काम हमें लागू नहीं पड़ता। मान लो कि कोई ग्रेजुएट भी हो गया, साइटेड है, नौकरी नहीं मिली तो वो ओला भी चलाएगा, रिक्शा भी चलाएगा, मजदूरी भी करेगा, पर ये सब काम तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तालीम में, शिक्षण में बहुत ज्यादा ध्यान लगा के, दिल लगा के, नए नए तरीके सीख के उसको अमल लाएं। ये जो आज कोविड के दरमियान हमने बुक शेयर की तरफ से जो सीरीज शुरू की है, उसके पीछे भी मकसद यही रहा है कि हम चाहते हैं कि जो लोग आगे आना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको आगे ले जाने में मदद करना चाहते हैं, उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनको हम एक दिशा देना चाह रहे हैं कि भाई आपके लिए भी ये मुमकिन है। जैसे रितु ने बताया कि नवीन है, मोसेस है, कॉर्नवालिस है, सुशीला है, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में। ब्लाइंड सक्सेसफुल नहीं है ऐसा नहीं है, पर उनकी गिनती अगर करे और उनके सामने अगर उनकी गिनती करे कि जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो उनकी तादाद बहुत कम है। और वो कम इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। एजुकेशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, स्किलिंग, आपके अंदर कितना जुनून है आगे आने के लिए, ये सारी चीज उस पर निर्भर करता है। कुछ चीज हमारे हाथ में है, कुछ चीज थोड़ी सी हमारे हाथ में है, पर मेहनत करना वो तो बिल्कुल हमारे हाथ में ही है। अगर वो नहीं हम करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे।